और किसी को याद है क्या what he said? Do you guys know what is a factor theorem? When remainder is 0, then it becomes a factor. The expression. या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलेगा। तो आज मैं थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस यूजिंग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट logarithms in the next class. And also, did I teach you guys how to evaluate all these things also? 0.35 bar, इसका वैल्यू एक्सप्रेस इट Yes, एज अ sir. Yes, रैशनल sir. नंबर। Yes. किया Yes. था ना? Yes, sir. कैसे करते हैं? Sir, first into 10, then after that we will take into 100. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी फास्ट। ओके, चलिए we'll start with a different kind of question. Before that, I just want to conclude, so I just want to ask, I hope everybody remembers this much. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay. I hope everybody in the class remembers this part, that dividend is always equals to divisor into quotient plus remainder. Okay. इसका एक अलग टाइप का एप्लीकेशन है, आई एम नॉट श्योर कि स्कूल में किया है कि नहीं, आई जस्ट वांट टू एंश्योर कि तुम लोगों को आता है। राइट डन। If x equals to, if x equals to 3 plus root 5, if x equals to 3 plus root 5, find the value of x raised to 4 minus 12 into x cube plus 44 into x square minus 48 into x plus 17. If x equals to 3 plus root 5, find the value of x power 4 minus 12x cube, 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17. दो मिनट के बाद बताना कैसे कर रहे हो। Okay, any idea, anyone? How are you planning to solve this? So we'll just put the values of x. This is given in the. Okay, that is one method which I am not interested, but that is the right method. सीधा x का value 3 plus root 5 substitute कर देंगे,
but the calculation is going to be quite tedious if you guys realize before substituting. x तो x ही रहेगा, x स्क्वायर तो फिर भी इवैल्यूएट कर लेंगे, x प्लस रूट 5 द होल क्यूब के लिए a प्लस b द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट दिस? 3 प्लस रूट 5 पावर 4 Squared then squared. ओके, पहले स्क्वायर करके वापस से स्क्वायर करेंगे, दैट इज फाइन. ओके, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सबको सिंपलीफाई कर सकते हो. दिस इज वन मेथड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेथड. एनीबडी पॉइंट आउट एनी अदर मेथड अदर देन दिस? एनी अदर मेथड अदर देन दिस? ओके, चलो मैं एक मेथड बताता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड. नाउ x equals to 3 plus root 5 है, x equals to 3 plus root 5 है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो. एज इन व्हाट यू गाइस डू इज eliminate the root part, as in this will become x minus 3 is equals to root 5. X minus 3 is equals to root 5. Then if I square on both sides, this will become x square minus 6x plus 9 is equals to root 5 का square 5. Or in other words, x square minus 6x plus 4 will be 0. So understand that if x is equals to 3 plus root 5, if x equals to 3 plus root 5, then x square minus 6x plus 4 will indeed become 0. Is this clear, everybody in the class? Yes. Okay. Now, have you studied division of polynomials in school? Long division or whatever you call it? Yes, sir. सबने पढ़ा ना long division? Yes, sir. अच्छा, now ये जो expression है given question, x raised to 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17. इसको I don't know how you write it. Where do you write the quotient? You write the quotient above this or on the right side? Left side. Quotient किधर लिखते हो तुम लोग? Left side. नहीं, लेफ्ट साइड तो डिवाइजर लिखते हैं ना. हाँ सर, ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं. ऊपर लिखते, sorry. कहाँ लिखते हो? ऊपर लिखते हो? आई एम जस्ट हाँ. आस्किंग क्यूरियसली. थोड़े स्कूल्स में राइट लिखते हैं, थोड़े. ओके नाउ कैन यू गाइस हेल्प मी आउट विद दिस? इसके बाद हाउ टू डिवाइड दिस? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो गिवन क्वेश्चन है दैट इज आवर डिविडेंड. द गिवन क्वेश्चन इज आवर डिविडेंड. तो डिविडेंड को मैं जो ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ. तो कैन यू गाइस हेल्प मी, क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप? Sir, into x square. So the divisor into x square. एक्स स्क्वायर रहेगा पहले. एक्स स्क्वायर रहेगा. कैसे एक्स स्क्वायर डिसाइड किया? सर क्योंकि पहला जो है वो x पावर 4 है in the हाँ, dividend. यस, पहला हाँ, एक्स पावर 4 है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा. दैट इज द थिंग. तो कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस नेक्स्ट स्टेप? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Then 6x minus 6x cube पहले एक्स पावर 4 भी आएगा minus 6x cube plus 4x square. प्लस 4x स्क्वायर. दैट इज राइट. फिर क्या करते हैं? फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? minus 6x cube minus 40x square plus 40x square. थैंक यू. प्लस 40x स्क्वायर. फिर बाकी हाँ minus 48x plus 17. दैट इज फेयर एनफ. कैन यू टेल मी फास्टली नेक्स्ट क्या करूं? फिर किससे मल्टीप्लाई करूं? Sir, 6x प्लस 6x की माइनस 6x? minus 6x. माइनस 6x. तो माइनस 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 24x. आई होप एवरीबडी नोज दिस. फिर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17. फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप. और कितना मल्टीप्लाई करूं? 4. करेक्ट. 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x square minus 24x 12. Plus 16 here. 4 into 4. 16. Okay. So finally I am left with 1. Okay. Now this 1 is what? Remainder. Remainder. Okay. Now we know for a fact that dividend is divisor into quotient plus remainder. So in this question we have expressed this. We have expressed our question, which is our x power 4 minus 12x cube
plus 44x square minus 48x plus 17 as divisor into quotient plus remainder. Okay, divisor in this question happens to be x square minus 6x plus 4. Okay, and quotient also in this question happens to be coincidentally just a lucky thing here. So divisor is basically focus more on the divisor. This quotient I am not interested. The x square minus 6x plus 4 into x square minus 6x plus 4 plus remainder आ गया 1. Remainder आ गया 1. अच्छा, now if I put x as 3 plus root 5, if I put x as 3 plus root 5 on the left hand side or on the right hand side, I'm going to get the same value. So instead of putting x as 3 plus root 5 on the left hand side, I'm going to put x as 3 plus root 5 in the right hand side. Right hand side में substitute करेंगे तो ये first term क्या होगा? 0. Yes, that is what we found out. x अगर 3 plus root 5 हुआ तो वो first term 0 हो जाएगा. तो अगर x को 3 plus root 5 put करेंगे तो I'll get 0 into some expression which I'm not interested plus 1. If I put x as 3 plus root 5, so this expression simplifies to 1. Okay. Did you understand the method first? Yes, sir. Okay. Was this done in school or is it the first time you're seeing? The first time. Okay. मतलब Then I'll give you another practice question. पहले इसको लिख लो ना फटाफट. What we did was we first found out divisor अलग से रूट को हटाने के लिए. फिर उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन डिविडेंड है उसको डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में पुट किया. इसको कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं. I assume I also introduced you guys to iota. I hope you remember. yes sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. तो सेम ये वाले क्वेश्चंस ना आयोटा के साथ भी ऐसे करते हैं. अगर 3 plus 5 आयोटा होगा तो भी 5 आयोटा को एक साइड रख के 3 को दूसरे साइड लेके स्क्वायर करना. जस्ट रिमेंबर दैट आयोटा स्क्वायर इज -1. ओके, फिर इसको कॉपी कर लो. हो गया तो बताओ. Done sir. डन, वेरी फास्ट. सबका हो गया कि शुड आई वेट? 7 minutes. हाँ, टेक 2 minutes, नो प्रॉब्लम, जस्ट आस्किंग. ओके अकमल. जब क्लास चलता रहता है तब भी तुम लोग नोट्स लिखते रहते हो कि यू जस्ट लिसन? It's advisable to listen carefully and write the notes after some time. So that Listen. depends on the question also. Sometimes calculative question होगा तो I want you to simultaneously solve with me. हो गया क्या? Is it done everybody? Yes, sir. Yes. Okay, चलो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम लोग खुद से करना भी. Write down if x equals to 2 plus root 3. If x equals to 2 plus root 3, find the value of x power 4 minus 2x cube minus 4x square minus 10x plus 10. If x equals to 2 plus root 3, find the value of this expression. हो गया तो मैसेज करो आंसर.
क्वाड्रेटिक क्या आया? x square plus x square minus 2x minus 1. नहीं नहीं, और किसी का आया क्या क्वाड्रेटिक? minus 4x plus 1. यस कीर्ति, चेक करो जिसने पहले बोला एक्स स्क्वेयर माइनस, पहले क्या किया, एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर इक्वल्स टू √3 का स्क्वेयर, ऐसे स्टार्ट किया ना? Yes. हाँ, एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x थोड़ी आएगा। Yes. Others also check. Now that's right. Yes, Sharma, Kirti, and 1 minute. Anirudh is also right. Vaidehi also correct. Yes, Vaidehi accurately correct. Moksha also correct. Very nice. People are getting the answers now. I'll wait for 2 more minutes. जल्दी करो बाकी लोग भी। That's right, Akmal. That's right, Ashley. Speed up, guys. पहले क्वाड्रेटिक को साइड में निकाल लो। x minus 2 is equals to √3, x square minus 4x plus 4 equals to 3, x square minus 4x plus 1 equal to 0 आएगा। जल्दी करना है बस। फर्स्ट पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस x स्क्वायर आएगा, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर आएगा शायद, फिर प्लस 2x मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। किसी को डाउट होगा तो अभी पूछो। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आना चाहिए। शो आर यू करेक्ट? जल्दी करो, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एवरीवन एल्स? तो अगेन दिस जो अपना क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज डिवाइजर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर x को हम लोग 2 प्लस रूट 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग प्लस 7, सो द आंसर इज जस्ट 7। जल्दी करना है, सिर्फ 7-8 लोगों ने ही आंसर बताया। Others, are you doing or are you understanding? अनुजा, अथर्व, अवंती, भाविका नहीं आया आंसर अभी तक। श्रेया, ब्रह्मी, हेत, are you all there? Yes, sir. Yes, sir. क्या टाइम लग रहा है मतलब, या फिर क्या टफ लग रहा है? नहीं सर, आया सर, वो चार्ट नहीं खुल रहा था। और कैलकुलेशन हो गया था। ओके, नो अद्वैत, आई डिडंट रिसीव योर आंसर। ओके, शुड वी डू एन अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Sir, 1 minute. जस्ट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके। रेस कर दूं क्या ये? Yes, sir. Anybody who wants to copy it down? Shubham, Ran, Rohan. Okay. Do you guys mind switching on the videos from next time? मतलब not every time or not all the time also. Internet connection नहीं होगा तो it is okay, but preferably it will be more fun. Right? Next question: if x equals to 3 plus 2 iota, if x equals to 3 plus 2 iota, find the value of 2x raised to 4 minus 13x cube plus 33x square minus 19x plus 25. If x equals to 3 plus 2 iota, find the value of this expression. 2x power 4 minus 13x cube plus 33x square minus 19x plus 25. The method will be the same. Get the answer right. तुम लोग, are you guys here? निधि, रिया, रोहन, शुभम? Yes, sir. Okay. Yes, sir. X equals to 1 कहाँ से आया? Are you saying the answer is 1, Hiresh? What does that mean? Previous question, na? Can you unmute and talk? अच्छा, माइक डजंट वर्क। अरे क्या तुम लोग इतने बॉम्बे में रहते हो, छोटे छोटे रीजंस बताते हो। बताओ, अच्छे से पूछना फिर। सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग यू मीन टू से आंसर इज 1 और यू मीन टू से x इज 1? x का वैल्यू तो गिवन है ना हिरेश? आंसर 1 बोलने की कोशिश कर रहा है तू कि क्या? पिछले सम में x का वैल्यू 1 हुआ तो वो जो बड़ा सा 4th डिग्री एक्सप्रेशन जो था उसका वैल्यू 1 है when we put x as 2 plus root 3. Answer is not x. अच्छा, that's right, Kirti. Thank you for giving the right answer.
वैदेही करेक्ट, यश शर्मा करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट, शिवायु करेक्ट। चलो अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, सबका आना चाहिए। अकमल ऑल्सो करेक्ट, सेम नेम्स, बाकी लोग का भी आएगा तो अच्छा रहेगा। Okay, Bhavika. Are others able to hear my voice? Yes, sir. Is it because it's rainy season and the Wi-Fi are oftenly down or something? Okay, जल्दी करो guys. रूट की जगह आयोटा है इस क्वेश्चन में, तो आयोटा को हटाओ, एज एन x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा से स्टार्ट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आयोटा। हिरेश समझ में आ रहा है क्या? x माइनस 3 का स्क्वायर इज 2 आयोटा का स्क्वायर, फिर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1, तो राइट हैंड साइड बन जाएगा -4, 4 आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। फिर उससे डिवाइड करो, पूरे क्वेश्चन को उस चीज से डिवाइड करना। अभी डिवीजन इज द ओनली पार्ट, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 से डिवाइड करो, जल्दी करो, स्पीड अप। नो हेत, कुछ मिस्टेक किया? रैन मिस्टेक किया कुछ? देखो हेत, पहले किससे मल्टीप्लाई किया? सर पहले 2x स्क्वायर। यस, 2x स्क्वायर से, करेक्ट। तो क्या आएगा? ये आना चाहिए 2x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 26x स्क्वायर आना चाहिए। सबट्रैक्ट किया तो क्या आया? सर -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। नो नो नो, नहीं गलत हो गया, 6x स्क्वायर नहीं आएगा, 7x स्क्वायर आएगा। समझा ना गलती? फिर जल्दी करो, फिर -x मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करो,
फिर से सब्ट्रैक्ट करो. I'll give you 1 more minute, last 1 minute for you to complete this sum. जल्दी करो. Did you guys study sum of the roots and product of the roots of a quadratic equation in school? No, sir. No, sir. Okay, okay, It was there only in CBSE. okay, okay. You guys are from ICSC majority. Yes. Yes, sir. Have you studied logarithms? Sir, we Yes, have, sir. but we don't remember much. Okay, okay. That's right. That's right, Hiresh Ran. Thank you. What about others? 10 students have given me the right answer. That's right. Yes, Shubham. Ayush, yes. Yes, yes. तुम लोग आंसर दोगे तो मुझे मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड एंड तुम्हारा लेक्चर भी फास्ट जाएगा इफ यू आर क्विकली आंसरिंग. वरना आई एम अज्यूमिंग कि समझ नहीं आ रहा है एंड आई एम गोइंग स्लोली. In fact, have you noticed that every time the remainder itself is the answer? Yes, sir. Brahmi, Ayush, correct. So वही एक्सपीरियंस वही है कि जल्दी जल्दी करना है. हर बार जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर रहता है, क्योंकि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट वाला हमेशा 0 बन जाएगा, क्योंकि डिवाइजर का पार्ट 0 बन जा रहा है. That's right, Janmajay. Okay, then we'll move on to the next question. किसी को डाउट होगा तो अभी पूछो. Right now is the time. Okay. Next one. So this is one of the applications of this theorem. The dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay. इसके बाकी applications are those factor theorem and all. Like when you guys see, instead of writing x पूरा polynomial लिखने की जगह, we are going to call the whole polynomial in this symbolic way. Have you encountered this symbol p bracket x? Yes, sir. Yes. Like p for polynomial, it's a polynomial of x. तो पूरा x power 4 plus x cube हर बार वो पूरा लिखने की जगह px करके शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि x के टर्म्स में है. py मतलब x की जगह y रहेगा. ओके. नाउ p अभी px फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है x square plus 3x plus 2. Okay. Now it is a quadratic expression px. Now is x plus 1 a factor of px? No. Is x plus 1 a factor of px? Yes, No. sir. Why no? Why yes? Yes, sir. Because Oh, x yes. equals to -1. If x plus 1 is a factor, then x plus 1 equals to 0. So then x equals to -1, then we'll substitute. That is right. Did others also understand what he said? अनिरुद्ध ने क्या बोला? Yes, No. sir. So it was not me. क्या बोलना? वापस बता. It was not me. It was not? Sir, it was me, Ayush. अच्छा आयुष. Oh, I am sorry. Extremely sorry. आयुष. जो आयुष ने बोला, did others understand? Yes, sir. Yes, sir. Everybody in the class? फिर मैं assume करके आगे बढ़ूंगा. किसी को डाउट होगा तो now is the time that I can revise. Okay. Okay. See, similarly, अभी x square minus 1 ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल. x square minus 1 is x plus 1 a factor of x square minus 1? Yes. Yes. Is x minus 1 a factor of x square minus 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now basically, अच्छा मतलब ये तो समझ में आ गया. Also इस रिमाइंडर थ्योरम करके कुछ होता है.
I'm going to start with the same thing. Remainder theorem. अरे और एक चीज, ये जो फैक्टर थ्योरम कर रहे हो तुम लोग x के लिए कर रहे हैं, x के लिए करने की जगह अगर मान लो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, like a power 5 minus b power 5, okay, is a minus b a factor of a power 5 minus b power 5? Is a minus b a factor of a power 5 minus b power 5? No. Yes, sir. Yes, sir. x की जगह इस बार a और b है, तो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सेम लॉजिक. Yes, कैसे? sir. A equals to B. यस, a माइनस बी फैक्टर को इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो a इक्वल टू b हो जाएगा. तो a इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज में, a इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ रहा है क्या चेक करेंगे. इफ a इज इक्वल टू b, आई एम इंडीड गेटिंग a पावर 5 माइनस b को भी a लिख देंगे तो a पावर 5 माइनस a पावर 5, दैट विल इंडीड बिकम 0. सो दैट इज आल्सो फैक्टर. ओके, like I'll just do a very simple question. Write down. Prove that a minus b comma b minus c comma c minus a. Prove that a minus b comma b minus c comma c minus a are factors of a times b square minus c square plus b times c square minus a square plus c times a square minus b square. Prove that a minus b, b minus c, c minus a are factors of this. Prove that का क्वेश्चन है, किसी का हो गया तो you can Yes, sir. tell out loud. Okay, nice. Yes, sir. Ayush, Anirudh, देखो others also. Yes, But sir. prove that Yes, each sir. one is a factor. एक एक करके प्रूव करना. पहले a minus b फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, a minus b फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए a minus b को 0 करेंगे या a इक्वल टू b. तो इस एक्सप्रेशन में a इक्वल टू b पुट करके देखो, इस एक्सप्रेशन में a इक्वल टू b पुट करके देखो. If a is equals to b, check what happens to this expression. If a equals to b, this will become, b की जगह a लिख देंगे, a times a square minus c square plus b की जगह a times c square minus a square plus c times a square minus a square. वो तो 0 हो गया. Okay, what about this? Are you expanding this? एक में a square minus c square है, एक में हाँ, एक में c square minus a square है. बस इसमें से बस माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So if a is equals to b, this whole expression is becoming 0. So we can say since a equal to b, this whole expression is becoming 0. Therefore, a minus b is a factor. Therefore, a minus b is a factor. Same logic b equal to c के साथ और c equal to a के साथ भी वो चेक कर सकते हो बहुत ही फास्टली. तो b equal to c के पास भी 0 होगा, c equal to a के टाइम पे भी 0 होगा. तो b minus c will also be a factor as well as c minus a will also be a factor. Okay, I hope it is clear. Should I wait anybody? Ria or anyone? Okay, chalo, write down next question. Find the value of a. Find the value of a. Find the value of a
if x minus a, find the value of a, if x minus a is a factor, if x minus a is a factor of x cube minus ax square plus x plus 3 equals to 0. Find the value of a if x minus a is a factor of this equation. That's right, that's right, that's right, that's right. Okay, good. All of you are right. जिसने भी आंसर भेजा बहुत ही बढ़िया है. ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सही बात है. x इक्वल्स टू a पुट करेंगे तो इट शुड बिकम 0. तो पूरा x इक्वल टू a पुट कर देंगे तो विल गेट a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 3 एंड दैट हैज टू बी 0. सो a का वैल्यू -3 है. ओके, आई एम गोइंग ऑन वेरी फास्टली बिकॉज़ मेनी ऑफ यू आंसर्ड इट राइट. ओके, नेक्स्ट. Next one. Also, do you guys have any time told, did I any time mention the factorization of a cube plus b cube plus a cube minus 3abc? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या होता है, याद है क्या? A plus b plus c into Yes, half of correct. Half of a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square. that is correct. Okay. In fact, इसको expand भी करेंगे तो एक ऐसा आएगा a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अच्छा, also a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. When is it 0? And a equals to b equals to c. When a equals to b equals to c is indeed correct. Is that the only answer? Or when something else is also 0? Sir, when a plus b plus c is 0. When a plus b plus c is equals to 0. So a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is 0 when either a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c. Okay. ये क्लियर है क्या? मतलब एक सेकंड लिख लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा टफ वाला. इसको लिख लो फटाफट. Done? Yes. Okay. Done. Find the value. Find the value of the expression a minus b the whole cube plus b minus c the whole cube plus c minus a the whole cube whole divided by a minus b into b minus c into c minus a. Find the value of this expression. That's right. Very nicely done.
Kirti, Yash, and yes, Kirti and Yash, both of you are right. Others also think for a minute. That's right, Bhavika. No, Hiresh. अच्छा ना, सबसे पहले नोटिस करो न्यूमरेटर में क्या है, क्यूब से, 3 क्यूब से, something cube and another cube, and denominator happens to be the product of those 3 expressions only. The denominator happens to be the product of those 3 expressions only. So something like, मतलब it is something of this format. It is like, it is of the format x cube plus y cube plus z cube divided by x y z. इस फॉर्मेट में है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, इस तरीके का फॉर्मेट में है. दैट्स इट. अनुजा, अद्वैत, भाविका करेक्ट. ओके, इस फॉर्मेट में है. तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स वाई जेड में रिलेशन अभी हमने जस्ट पढ़ा. तो अभी इस क्वेश्चन में x का वैल्यू a माइनस बी है, y का वैल्यू b माइनस सी है और z का वैल्यू c माइनस a है. Now what have you noticed with these three, a minus b minus c minus a? इन तीनों एक्सप्रेशंस में क्या नोटिस किया? तो तीनों का सम 0 है. यस, तीनों का सम 0 है. तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या लिख सकते हो? If x plus y plus z is 0, then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz should be 0. Or in Yes, other sir. words, x cube plus y cube plus z cube has to be 3xyz. So the numerator is basically 3 times xyz. And denominator is of course xyz. So xyz cancel, okay, we are only going to get the number 3. So the answer is 3. That's right, Nidhi. स्ट्राइक हो गया तो बहुत ही सिंपल है, पूरा क्यूब करके सॉल्व करेंगे तो 2 लेंदी हो जाएगा. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कर लो फटाफट. थोड़ा इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पुट करके दूंगा सेम क्वेश्चन को. So after this, the second lecture is in the evening or immediately followed? Evening, sir. Evening, okay. So what do you guys do in the middle? Time I pass sleep. करते, हाँ? बोलो बोलो. I sleep in the afternoon. अच्छा, you sleep in the morning? In the afternoon. Okay. Okay. Is it done, everybody? फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार स्ट्राइक हो गया तो इजी है. ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं. डन. If x cube plus y cube plus 3xy is equals to 1, if x cube plus y cube plus 3xy is equals to 1, find possible values of x plus y. If x cube plus y cube plus 3xy is 1, find possible values of x plus y.
No, Kirti. Do you think x and y, if both of them are 1, this equation is correct? 1 cube plus 1 cube plus 3 into 1 is not 1. No, कैसे आया भाविका? No, Kirti, you are right. I'm sorry. Kirti, I just read x equal to y. X. That is not the only answer, but that is right, Kirti. Bhavika, yes, you are right. But that is not the only answer. Okay. सबसे पहले I am going to rearrange the question a little bit for you guys to realize. यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, -1 बन गया, और ये 3xy को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, -3xy बन जाएगा. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -1 को लिखेंगे -1 का क्यूब, -1 को लिखेंगे -1 का क्यूब, और राइट हैंड साइड -3xy को क्या लिखने वाला हूं? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? 3 into x into y into 3 minus into x into y into -1. So this is the hint. Just try it for 2 more minutes. That is not the only answer, तुषार. कीर्ति, भाविका और आंसर्स नहीं आ गया? Yes, correct, Kirti. Correct, Anirudh. देखो, शुभम और तुषार, तुम लोग करेक्ट हो, बट नॉट द ओनली आंसर. एक और आंसर है. Anirudh correct, Kirti correct. Yeah, I just said. Okay, now it's time for me to tell now. अब देखो यहाँ पे it is typical of the form a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. a cube plus b cube plus c cube 3abc होगा, तो there are two things which I told, जो बहुत सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं. a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc कब होगा? Either when a plus b plus c is 0 or when a equal to b equal to c. There are two possibilities. तो similarly इस क्वेश्चन में x cube plus y cube plus z cube equals to 3xy z है, z की जगह -1 है.
So there are two possibilities. The two possibilities are, एक possibility होगा a plus b plus c is 0 और the possibility is x plus y minus 1 is 0. तो x plus y का वैल्यू 1 आएगा, जो बहुत लोगों ने सही बता दिया फर्स्ट टाइम. एक और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बता पा रहे हो? दूसरा पॉसिबिलिटी a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी होगा when x इक्वल टू y इक्वल टू -1, x इक्वल टू y इक्वल टू -1, और इन दिस केस x प्लस y का वैल्यू पूछे तो वो -1 -2 बन जाएगा. So there are two answers, 1 and -2. There are two answers, 1 and -2. Check करो निधि कैलकुलेशन. 1 and -2 are the answers. बेसिकली इसको रीअरेंज करके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्म में पुट करना, दैट वाज द चैलेंज. चलेगा? एरेज कर रहा हूं इस पार्ट को. और किसी को डाउट है कि इस सब में? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो एरेज. है ओके निधि, क्लियर हो गया ना आंसर का मिस्टेक जो भी है तेरा? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आई एम नॉट श्योर कि तुमने स्कूल में किया कि नहीं, बट स्टिल जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग. वैसे रिमाइंडर थ्योरम तुम लोगों को समझ में तो आता है. रिमाइंडर थ्योरम, just for the sake of it I'm telling, if p of x is a polynomial, okay, it leaves p alpha as remainder when divided by x minus alpha. इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबडी इन द क्लास हु हैज डाउट विद दिस पार्ट? किसी को नहीं पता है तो अभी लिख सकते हो रिमाइंडर थ्योरम. If px is a polynomial, it leaves the remainder p of alpha when divided with x minus alpha. जैसे कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एकदम से टफ कर देंगे इसको. आर यू गाइस राइटिंग दिस डाउन? और ठीक है लिख लो 1 मिनट में, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए. Done, sir. Okay. Right on. Find the remainder. Question. Find the remainder when x raised to 10 minus x raised to 9 plus x raised to 8 minus x raised to 7 plus ... minus x plus 1. Find the remainder when x raised to 10 minus x raised to 9 plus x raised to 8 minus x raised to 7 ... minus x plus 1 equals to 0. Find the remainder when this is divided by, and then there are 3 questions. First question, x minus 1. Second question, x plus 1. Third question, x. फर्स्ट का करेक्ट है कीर्ति. These are 3 questions on the board. Yes, Anirudh. देखो
theorem is written on the board only. Ran first का आंसर wrong है. Yes, yes. Anirudh, correct. Freya, no. Check करो carefully. Ayush, correct. कीर्ति राइट, अनिरुद्ध राइट बोला था. अकमल करेक्ट. रैन एंड फ्रेया, कैन यू टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो? अरे आयुष, नो, Ashley, you didn't type only. You mean to say that is only the answer? Wait, sir. Additions. Akmal, second and third wrong है. अरे what are you guys doing? x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ढूंढने के लिए क्या करेंगे? We will put x equals to 1, I guess. This is what initially Ayush was also telling, and everybody nodded their heads. हाँ अकमल, फ्रेया रैन x equal to 1 ही पुट किया ना? x को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से करो. Do it carefully. Also, are you guys comfortable with English or Hindi? Both, sir. x को 1 पुट करेंगे तो विल गेट 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. अभी केयरफुली करो, हमेशा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होता चला जाएगा. लास्ट में एक 1 बच जाएगा, एक 1 बच जाएगा. तो फर्स्ट का आंसर 1 है, फर्स्ट का आंसर 1 है. 2 कैसे आया चेक करो. फ्रेया, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा ओके कीर्ति, हिंदी ओके. सेकंड वन में क्या पुट करेंगे? x को -1 पुट करेंगे. सेकंड क्वेश्चन में विल पुट x एज -1. अभी -1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन को. फर्स्ट वाला -1 पावर 10, दैट विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट वन -1 पावर 9 विल बी -1, लेकिन आगे एक और माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा. फिर थर्ड वाला फिर से +1 आएगा, फिर से +1 आएगा. ऐसे +1 कितनी बार आएगा देखो ध्यान से. अच्छा ओ फ्रेया, मे बी दिस इज द मिस्टेक यू डिड. ये डॉट 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 मतलब समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. x power 7 के बाद x power 6, x power 5, x power 4, 3, 2 वो सब है. इट्स अ लेजी वे टू राइट. इसीलिए 6 आया था क्या तेरा आंसर? इधर है 1 1 1 1 पुट करेंगे. आयुष एंड एशली बोथ करेक्ट. रैन सेकंड वाला देख -1 थोड़ी आएगा. 1 1 1 1 कितनी बार होगा? हेत करेक्ट. थोड़ा जल्दी करो यार अदर्स. यस करेक्ट. सेकंड का आंसर 11 आएगा. सेकंड का आंसर 11 आएगा. मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, थोड़े लोग आंसर ही नहीं बता रहे. कुछ बोलो तो माइक प्रॉब्लम बोलेंगे, टेक्स्ट भी नहीं कर रहे. रिया, आर यू देयर? ब्रह्मी, केश, रिदम, आज एक आंसर भी नहीं बताया.
रोहन, कैसे पता चलेगा कि तुम लोग हो या ना हो? ओके, थैंक यू रोहन. सोनिका, आर यू देयर? वैदेही? Yes, sir. ओके ओके, चलेगा. थर्ड आंसर, थर्ड सम में क्या करेंगे? एक्स को Sir, 0. x equals to 0. हाँ, x मतलब x माइनस 0 है, बस x मतलब x माइनस 0 है. सो दैट इज सेम एज पुटिंग x इक्वल टू 0. 0 पुट करेंगे तो सब 0 बन जाएंगे. सिर्फ आंसर विल बी जस्ट 1. आंसर विल बी 1. ठीक है, चलेगा. एरेज कर रहा हूं मैं. थोड़े क्लासेस के बाद इफ यू गाइस आर नॉट सो इंटरेक्टिव, व्हाट विल हैपन इज सर्स विल अज्यूम कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है और फास्टली चले जाएंगे. फिर थोड़े दिन के बाद बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया. सो यू गाइस कैन सेव दिस, मतलब यू गाइस कैन कंट्रोल द ऑनलाइन लेक्चर, बी मोर इंटरेक्टिव, स्पेशली यू गाइस ऑल, और मतलब मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट स्कूल ओनली, सो यू गाइस कैन हैव मोर इंटरेक्शन. Do you guys interact with each other other than this online lecture? मतलब online lecture में तो interact नहीं करते हैं. Do you guys meet each other or discuss anything? नहीं. Do all of you stay nearby? कोपर खैरने में ही रहते हैं क्या सब लोग? Yes. Yes, sir. Okay. अभी बाहर निकल रहे हो क्या आजकल? हाँ सर, लॉकडाउन खत्म हो गया. हाँ, मतलब थोड़ा बहुत वॉक वगैरह के लिए, मतलब फ्रेश एयर के लिए निकलोगे तो चलेगा. और ये क्लास स्टार्ट होने के पहले कितनी देर पहले उठते हो? Half an hour. ओके, चलेगा. अभी फिर लेकिन रात तक लेक्चर, रात को भी लेक्चर होगा तो थोड़ा एनर्जाइज रहो. दोपहर में सोना अच्छी बात है. तो रात को भी होने वाला है फ्यूचर में. आज आज ही बोला ना तुम लोगों ने कि आज रात को भी है शाम लेक्चर. को सर होता है 3:30 to 5:30. ओ 3:30 to 5:30, तो यार लकी लकी, क्योंकि थोड़े देर आर फ्यू हाउसेस जिनका 6:30 to 8:30 हो रहा है. तो तुम्हारा तो नहीं हुआ क्या इस हफ्ते? नो सर, हम लोगों का 3:30 to 5:30 का ओ, होता अच्छा है है बीच वो. में स्कूल के टाइम के लिए. अच्छा है, अच्छा है वो. Okay, next question is this manner. I am writing it on the board. Copy it down. एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा. Okay, this is the question. I'll read out the question. If p of x is a polynomial, which leaves the remainder 3 when divided by x minus 1 and leaves the remainder 5 when divided by x minus 2, then find the remainder when p of x is divided by the product x minus 1 into x minus 2. And find the remainder when p of x is divided by the product x minus 1 into x minus 2. I just want to ensure कि तुम लोगों ने स्कूल में इतना लेवल ऑफ क्वेश्चंस किया है कि नहीं. हाँ, कीर्ति भाविका, yes, you should interact and you should go out. Good रैन. अकमल क्यों कर दिया? मतलब तुम्हारा स्कूल था ना इसीलिए कर दिया? कुछ शौक तो नहीं है, बट ठीक है. तुम लोग नींद में तो नहीं रहते ना 7:30 वाले लेक्चर में अभी? नहीं सर. ठीक है. और बैठ के पढ़ते हो ना टेबल चेयर पे? यस सर.
ऐसे लेट के बेड पे और ऐसा फोन लेके ऐसे तो मत करो। तुम लोग ट्राई करो, आई जस्ट कम इन 1 minute। Okay, any answer, anybody? Okay, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो भी बताओ, कुछ थॉट प्रोसेस होगा तो भी बताओ, विल स्टार्ट डिस्कसिंग। और डू यू नीड मोर टाइम टू थिंक? समझ नहीं आ रहा है। Okay, anybody have any idea what should we be doing? Just for my curiosity, do you think the answer is 15? Uh, 15 या 8 नहीं होगा आंसर, ऐसे वी कैन नॉट जस्ट मल्टीप्लाई द रिमाइंडर्स, 3 into 5 कर दिया या 3 + 5 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। ओके, सुनो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम शुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। ये क्वेश्चन के बाद और थोड़ा सा टफर क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आई एलॉबरेटली डू इट एज स्लोली एज पॉसिबल। डिड एवरीबॉडी राइट द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ कोई बता सकता है क्या? रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ एनीबॉडी? किसी को पता है क्या रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ? अच्छा, सुनो, ये थोड़ा सा हमने सडनली मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन कर लिया, बट स्टिल नाउ ये थ्योरम तो तुम लोग भूलोगे नहीं कभी भी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ वी हैव प्रैक्टिस्ड दिस ओनली टुडे ऑल डे। नाउ डिविडेंड मान लो px है, डिविडेंड मान लो px है। अभी डिवाइजर मान लेते हैं x माइनस अल्फा है, लेट अस अज्यूम द डिवाइजर इज x माइनस अल्फा इनटू कोएफिशिएंट, लेट मी कॉल इट एज q फॉर द टाइम बीइंग, कोई तो x का टर्म्स पे q करके लिख देता हूं, और प्लस रिमाइंडर। ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी x के लिए सेम है, कोई भी x के लिए सेम है, x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सेम आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा टू मेक इट इजी? अल्फा, क्यों? क्योंकि डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट फिर 0 हो जाएगा। Yes. So if I put x as alpha, left hand side will become p of alpha. Or right hand side, this will just become 0. This will just vanish. 0 into quotient plus remainder. So basically p of alpha is remainder. तो यही रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर p of x कोई पॉलिनोमियल है और उसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो p ऑफ अल्फा होता है। तो इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है ऑलरेडी? इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है? p ऑफ x को किससे डिवाइड कर रहे हैं पहले? X minus 1. x माइनस 1, और रिमाइंडर क्या आएगा? 3. रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? P of 3. p ऑफ 1। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि p ऑफ 1 आना चाहिए रिमाइंडर, और क्वेश्चन में दे रखा है 3 है,
तो indirectly question maker is trying to say that p of 1 is 3. Is this clear everybody? Yes, sir. What about the second part? p of x को x P of minus 2 2 is से 5. हाँ x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, बट p of x को x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो p of 2 आना चाहिए रिमाइंडर, तो p of 2 का वैल्यू 5 है. Okay, so these two informations have been given in our particular question. Okay, in our particular question which we'll soon use. अच्छा, next part of the question, next part of this theorem which is remainder theorem को थोड़ा सा upgrade करेंगे. अच्छा, next part of the question में try to think again. अभी मान लो मेरे पास कोई तो बड़ा सा पॉलिनोमियल है, ह्यूज पॉलिनोमियल से x पावर 10 प्लस 3x पावर 9 प्लस 8x क्यूब वगैरह 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 समथिंग. ओके, ना इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इस बार क्यूबिक इक्वेशन से इसको मैंने डिवाइड किया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इससे मैंने डिवाइड किया. तो एवरीबडी नोज लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे. पहले व्हाट डू यू मल्टीप्लाई फर्स्ट, लाइक पहले क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, Raised to 7. x रेज़ टू 7. x रेज़ टू 7 लिखोगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके वगैरह वगैरह लिखोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, we keep on doing it. Now if I keep on doing it and finally if I reach something like x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1, if I say that this is the remainder, will you guys agree or disagree? If I say that this is the remainder, then will you guys agree? No, sir. We will further do that. Yes, we should not agree that this is the remainder. Kyunki, like he is saying, we can further divide this. So this is not the remainder. Acha. Can I say x cube plus x square plus x plus 1 will be the remainder? No, sir. ये भी रिमाइंडर नहीं होगा because इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. Can this be the remainder? X square plus x plus 1. Yes, sir. This can be the remainder. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, now what is the relation? What is the relation between degree? Do you guys understand the word degree? Yes, sir. Power maximum. Highest power. तो degree of the divisor और degree of the remainder में क्या relation है? Sir, remainder का हमेशा कम होना चाहिए. Yes, degree of the remainder should be less. Degree of the remainder should be less than the degree of the divisor. Is degree of the divisor. Are you able to digest this much? Everybody in the class? Yes. अच्छा, तो रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम रहेगा, तो रिमाइंडर का डिग्री लेस रहेगा. लेट अस रिमेंबर दिस. अच्छा, नाउ जब डिवाइजर अभी मान लो x माइनस अल्फा था जो प्रूफ कर रहे थे, x माइनस अल्फा था डिवाइजर, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 1 है. तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए? Less than 1. लेस देन 1 मतलब क्या बचा फिर? 0. तो डिग्री ऑफ द रिमाइंडर 0 मतलब क्या? कांस्टेंट है. कांस्टेंट 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट. तो जब डिवाइजर का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, नाउ एवरीबॉडी, अभी तक तुम लोग अगर खो गए तो वापस से गेट बैक. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल समथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, इस क्वेश्चन में, इन द क्वेश्चन व्हिच वी आर सॉल्विंग, डिविडेंड हैज बीन गिवन टू अस एज कंसीडर्ड एज px. ओके, जो पूछा है क्वेश्चन देखो, लास्ट लाइन जो पूछा है, व्हाट इज द डिवाइजर? What is the divisor? X minus 1 into x minus 2. X minus 1 into x minus 2. Notice what is the degree? डिवाइजर का डिग्री कितना हुआ? 2. डिवाइजर का डिग्री 2 है. अभी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. नो, रिमाइंडर का डिग्री कितना रहेगा? 1 डिग्री. तो 1 डिग्री की कोई चीज को अज्यूम करने के लिए वी कैन अज्यूम द एक्सप्रेशन एज ax plus b. ओके, ax plus b. तो सॉल्यूशन विल स्टार्ट लाइक दिस. लेट रिमाइंडर be ax plus b. Let the remainder be ax plus b. Okay, so since the remainder is ax plus b, we
We have assumed dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Okay. Now I am going to substitute x as any convenient value whichever is possible. Which is a convenient value of x which you would like to substitute? Convenient value of x. 2. 2. Why 2? Because x को जो भी पुट करेंगे तो यहाँ पे p ऑफ समथिंग आएगा, p ऑफ 2 या p, अभी हमें p ऑफ क्या चीज पता है क्वेश्चन में, देखो हमें ये दो इंफॉर्मेशन दे रखा है, हमें p ऑफ 1 और p ऑफ 2 गिवन है, तो इसीलिए हम लोग अभी x को या तो 1 पुट करेंगे या तो 2 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में. इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा p ऑफ 1, राइट हैंड साइड क्या होगा? A plus B. हाँ, 0 प्लस a इंटू 1 प्लस b, और p ऑफ 1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है 3. सो देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल्स टू 3. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम x को 2 पुट करूंगा तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू अगेन x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि अगेन 0 हो जाएगा, प्लस x को 2 पुट करेंगे तो a इंटू 2 प्लस b, और p ऑफ 2 का वैल्यू ऑलरेडी मिला है 5. सो इन अदर वर्ड्स 2a प्लस b का वैल्यू 5 होगा, 2a प्लस b का वैल्यू 5 होगा. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. साइमल्टेनियसली सॉल्व ओरली कर सकते हो क्या? कैन यू गाइस डू दिस ओरली? Yes, sir. A2 B1. Yes, if you just subtract it, we will get a का वैल्यू 2 and b का वैल्यू 1. So therefore remainder or our answer is ax plus b, or our answer is ax plus b, a की जगह 2 और b की जगह 1. So our remainder is 2x plus 1. That is the answer. Okay. इसको कॉपी कर लेना अच्छे से. बेसिकली हमने फंडामेंटल रूल यही यूज किया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इस बार डिवाइजर डिग्री 1 नहीं डिग्री 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर का भी डिग्री बढ़ गया, तो रिमाइंडर को कांस्टेंट नहीं लेना पड़ेगा, ax प्लस b. a और b ढूंढने के लिए दो इक्वेशंस जनरेट किए, अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके. लिख लो, राइट इट डाउन अच्छे से. लिखते टाइम वापस से डाउट हो रहा है तो पूछो. But did you guys understand this? Yes, sir. Yes, बहुत ज्यादा Yes, टफ sir. हो गया तो बताओ. लाइक इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना? हाँ सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट. ठीक है. 10th में क्लियरली किसी का नहीं आया, मतलब आई एम अज्यूमिंग नहीं था. अच्छा, अगर डिवाइजर का डिग्री 3 होगा तो रिमाइंडर को क्या अज्यूम करेंगे? ax square plus यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेंगे. और आयुष, तेरा डीपी वो है क्या, ब्लैक क्लोवर का है क्या? हाँ सर, मैं पहले ब्लू हाउस में था याद. अच्छा हाँ, फिर वही. येलो में डाल दिया मुझे. क्यों? वो सर एक्चुअली मैं नॉर्थ पॉइंट में एडमिशन है ना, तो जब ब्लू हाउस डिवाइड हुआ था ये डिफरेंट हाउसेस में, तो सर ने मुझे ऐड नहीं किया था येलो हाउस में. अच्छा अच्छा. सर भूल गए थे, बाद में उनको याद आया क्योंकि मेरा आईडी पासवर्ड एंड रोल नंबर इसमें आया इस book में. ओ, तो ब्लू में ज्यादा मजा आ रहा है कि यहाँ पे? सर क्यों बोलूं मैं मतलब. तो यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट मतलब डोंट फील बैड अदर्स, बट तुम लोगों की क्लास में रिलेटिवली आई फील कि थोड़ा इंटरेक्शन कम हो रहा है. आई डोंट नो इफ यू ऑल आर शाई और डरते हो मेरे से और समथिंग, आई डोंट नो. तुम लोग सारे क्लासेस में इतना कम बात करते हो? हाँ सर. क्यों ऐसा, बाय चॉइस क्या? स्कूल में भी कम बात करते हो क्या? सर स्कूल के क्लासेस काइंड ऑफ स्टार्ट नहीं हुए थे. हाँ मतलब, अरे हाँ, तो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 10th में भी तुम लोग नॉर्थ पॉइंट स्कूल से थे क्या? सर कुछ लोग नॉर्थ पॉइंट से ही हैं, मतलब बहुत लोग बाहर से एडमिशन. बट 10th भी ऑनलाइन ही हुआ होगा ना पूरा? हाँ सर. 9th भी ऑनलाइन हुआ क्या तुम लोगों का? नहीं सर, हाँ, 9th सर. ऑफलाइन था. ओके, 9th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे शायद ना? सर नहीं आईसीएसई सर, के हुए हुए थे थे. हमारे. अच्छा, तुम्हारे सर हुए हमने थे तो क्या? बोर्ड एग्जाम्स दी थी 9th. ओके ओके. यश प्रधान, ये जो तूने फोटो डाला है कार का,
लाइक ये वो मूवी का है कि या तेरी कार है? नहीं सर मेरी ही है। अच्छा तेरी है क्या? एक ऐसा वाइट कलर का एक कोई तो कार की मूवी थी यार, उसमें ड्रिफ्ट होता है बहुत ज्यादा, ड्रिफ्टिंग के ऊपर, इनिशियल डी और ऐसा कुछ तो है नाम। याद नहीं है, बहुत पुरानी है। आजकल कुछ नेटफ्लिक्स पे किसी पे कुछ नया चीज आया है क्या? Amazon you guys? फैमिली मैन 2 आया है। Yeah, some yesterday Sir, only, Loki yesterday only another house, Purple House, or somebody was telling it was very good. अच्छा लोकी अच्छा है क्या हिरेश? I also heard लोकी मार्वल वालों का अच्छा है। वो वांडा विजन देखा था, मुझे थोड़ा सा बोर ही लगा था वो, उसमें कुछ ज्यादा ही। सर वो स्टार्ट में टीवी बहुत स्लो सीरीज है, है उसके तो बाद इंटरेस्टिंग है। कौन किसके बाद इंटरेस्टिंग है? 2 एपिसोड्स के बाद, 2-3 एपिसोड्स अच्छा के वांडा सर विजन एंड क्या? अच्छा उसका। ओके। लोकी का पता नहीं, बट रैग्नारॉक करके एक सीरीज था नेटफ्लिक्स पे। I don't know. मतलब it is also similar to Thor type only, but it is Norwegian language, I guess. That was good actually. अच्छा देखा क्या तूने हिरेश? तुम लोग नॉन इंग्लिश मूवीज भी देखते हो क्या? सर जो अच्छा होता है वो देखना पड़ता है क्योंकि काइंड ऑफ बॉलीवुड तो गया हुआ है। बॉलीवुड तो अभी बॉलीवुड में मतलब अभी फैमिली मैन को बॉलीवुड कंसिडर करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट सर ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, उसको काइंड ऑफ थिएटर से बाहर ही रखो क्योंकि हाँ ओटीटी वही वही। प्लेटफॉर्म्स आर वे बेटर। But I heard Family Man was also very good. Like my wife was saying यस it yesterday only. यस सच। सही है। ये हो गया क्या क्वेश्चन लिख के? हाँ Yes, sir. ओके चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से। ओके पूरा बहुत ये क्वेश्चंस एक्चुअली इतने बड़े हैं, बट बस मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं तो तुम लोग समझ जाना। ओके ऐसे just write it in this manner, you'll understand it. P of x dash polynomial मतलब if P of x is a polynomial, okay, P of x is a polynomial, or P of x when I divide with x minus 1, just a minute, I'm just thinking of the question. Okay, P of x when I divide it with x minus 1, then the remainder is 8, and when I divide P of x with x plus 1, then the remainder is minus 2. Then the remainder is minus 2. So when I divide P of x with x square minus 1, what will be the remainder? What will be the remainder? ये है क्वेश्चन। पूरा लिखाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गया ना क्वेश्चन? हाँ सर। When if P of x is a polynomial which leaves the remainder 8 when divided with x minus 1 and leaves the remainder minus 2 when divided with x plus 1, find the remainder when P of x is divided with x square minus 1. हाँ सही कह रहा है हिरेश, I also liked it a lot. हाँ मतलब कीर्ति वो सही है, बट कंप्लीट आंसर वैसे नहीं लिखते। कंप्लीट आंसर कैसे लिखते हैं? या अकमल वेरी गुड, हाँ. यश शर्मा करेक्ट, आयुष करेक्ट है। इट इज जस्ट दैट आंसर वैसे नहीं बोलते।
सेम पिछले सम जैसा ही है. That's right, Anirudh. तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक हुआ है? What was the last thing that you guys studied in trigo? Multiple angles or submultiple. अच्छा, 2 theta वो सब. Yes. Yes, sir. Have you guys studied sin C plus sin D formula? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Nice, correct, Ran. I think I'll just move fastly here क्योंकि बहुत लोगों का आ रहा है. रिमाइंडर 8 है तो फर्स्ट वाला p of x को एक्सपोनेंशियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p of 1 आना चाहिए, 8 दे रखा है. सेकंड वाले का रिमाइंडर p of -1 आना चाहिए जो -2 दे रखा है. So indirectly p of 1 is 8 and p of -1 is -2. That is the information. p of x को x square -1 से डिवाइड करें, सेम ओल्ड मेथड. p of x equals to x square -1 into quotient प्लस रिमाइंडर को ले लेंगे हम लोग ax plus b. रिमाइंडर को ले लेंगे ax plus b. फिर x को 1, x को -1 पुट करना है. That's all. x को 1 पुट करेंगे तो you will get a plus b is equals to 8. x को -1 पुट करेंगे तो you will get -a plus b is equals to -2. Solving the equations, adding and subtracting. ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, a और b का वैल्यू मिल जाएगा. a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3 आना चाहिए. That is right, Heath. So therefore we will conclude that the remainder is 5x plus 3. That the remainder is 5x plus 3. मतलब ये सब कैलकुलेशन जो है ऐसे स्मूथली हो जाना चाहिए, लाइक सुपर फास्ट. Okay. Is it done or should I wait? Done, sir. Everybody in the class? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलेगा. एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का. यस बताओ, कोई पूछ रहा था? ओके, Redon, one last question of this type, just to increase your speed of calculation. Just do it as fast as possible again. Once again, p of x is a polynomial which leaves remainders which leaves remainders 3, 6, 2 when divided. P of x is a polynomial which leaves the remainders 3, 6 and 2 when divided by x, x minus 1, x plus 1 respectively. Then find remainder when p of x is divided by x cube minus x. Then find the remainder when p of x is divided by x cube minus x. बस क्यूबिक इक्वेशन है, that is the last upgrade.
नो कीर्ति, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा. यश शर्मा, वेरी एक्यूरेट, परफेक्टली सेड, वेरी फास्ट यू आर. नहीं कीर्ति, फर्स्ट 4 ही नहीं आएगा, वो उधर ही मिस्टेक हो गया. देखो छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस. ओके, ये इंफॉर्मेशन को तो एग्जॉस्ट कर लो. सबसे पहले x मतलब x माइनस 0, इन अदर वर्ड्स p ऑफ 0 3 है, p ऑफ 1 6 है और p ऑफ माइनस 1 2 है. p ऑफ 0 3 है, p ऑफ 1 6 है और p ऑफ माइनस 1 2 है. But the only thing this time is when we are considering p of x as the dividend which is x cube minus x into quotient plus remainder को क्या assume कर रहे हो? ax square plus bx Yeah, plus c. ax square plus bx plus c. That is the idea. And for ABC, you have to substitute 3 values, and 3 values are obviously known. करो अभी calculation. ब्रह्मी, you're right. कीर्ति, प्लस और भी कुछ है, वो दोनों सही है. सी का वैल्यू भी ढूंढ ले. रिदम, आर यू हियर? ऐसे लग, पूरे क्लास में बात ही नहीं किया तूने क्या? इतना अच्छा नाम रखा अपना और इतनी कम बातें करता है. Are you a singer or do you play any instrument? Yes, sir. I play guitar. Okay. Like which one? Acoustic guitar, sir. Acoustic. Nice. Oh, okay, okay. Anirudh, correct. Kirti, yeah. That's right. जल्दी करो यार, others also x को 0 पुट करना है. निधि करेक्ट. इस क्वेश्चन शुभम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. देखो ए और बी का रिवर्स आ गया आंसर. ए और बी का वैल्यू चेक करना, रिवर्स आ रहा है. x को 0 पुट करेंगे, p ऑफ 0 तो 3 दे रखा है, 0 पुट करेंगे तो 0. दिस इज द इजीएस्ट पार्ट. x को 0 पुट करेंगे तो सीधा ही c का वैल्यू मिल जाएगा. दैट्स राइट आयुष. दैट्स राइट हेत. x को 1 पुट करो, 6 आएगा p ऑफ 1 और राइट हैंड साइड हमेशा फर्स्ट वाला 0 ही हो जाएगा. फिर ये बचेगा a प्लस b प्लस c. जल्दी करना. फिर लास्ट वाला x को -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आएगा,
राइट हैंड साइड a इंटू -1 स्क्वायर a आएगा प्लस b इंटू -1 माइनस b आएगा प्लस c, a माइनस b प्लस c आएगा। बस सॉल्व करना। यस वैदेही करेक्ट है। फाइनल आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर ढूंढना है। दैट इज करेक्ट वैदेही, बट जस्ट बी मोर क्लियर। तुम लोगों के पास बेसिक मैथमेटिक्स की मॉड्यूल है ना? Yes, sir. Yes, sir. हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है? Hard copy, yes, sir. ओके ओके, यू गाइस कलेक्टेड फ्रॉम दिस सेंटर? सर बेसिक Sir, मैथ्स का नहीं basic मिला। maths means module, right? मॉड्यूल 1 में बेसिक मैथ्स है क्या? हैवंट क्लियरली नो सर, Yes, sir. बेसिक मैथ्स नहीं है। सर Sir, है. Sir है। है। वही होना तो चाहिए। मैं चाहे तो सिर्फ बेसिक मैथ्स का सेपरेट करके डाल दूंगा, चाहे तो ग्रुप पे। एक सेकेंड। सर आपने भेजा है बेसिक मैथ्स का सॉल्व। Yes, sir. ओ ठीक है, मैंने अभी सेंड कर दिया। मॉड्यूल का ही पार्ट है, सिर्फ अलग से है। ओके जल्दी करो यार, सॉल्व करना फास्ट करो। c का वैल्यू 3 है, विल जस्ट पुट c एज 3 हियर, विल गेट a प्लस b इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3। c का वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो a माइनस b का वैल्यू कितना आ रहा है? -1 आएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, जल्दी करो। a और b का वैल्यू, a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 2 आएगा और c का वैल्यू 3 आएगा। तो वैदेही समझ में आया ना आंसर? फिर Yes, sir. तो रिमाइंडर इज बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दिस इज द रिमाइंडर, दैट इज ओनली द आंसर। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, तुम लोगों ने लॉस ऑफ इंडेक्सेस सबको पता है ना? यस Yes, sir. ओके और ठीक है, a रेज टू m प्लस n वो सब बताने की जरूरत नहीं है ना। और हैव यू गाइस स्टडीड a रेज टू x का ग्राफ इन स्कूल? नो सर। No, ओके sir. ओके चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर लॉगरिथम स्टार्ट भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 मिनट है तो जस्ट आई कैन ब्रीफ यू गाइस फास्टली। ये हो गया तो बता देता हूँ। ये हो गया क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir, e raised to x और a raised to x? हाँ दोनों। ई रेस तो एक्स पता है। ई रेज टू एक्स पता है कैसे रहता है ग्राफ ई रेज टू एक्स का? इट विल बी अ नॉन लीनियर फंक्शन विल राइज अप। या करेक्ट। You have you guys do you know the value of e? 2.71 2.71 to start. Yes, approximately. Okay. कहाँ पे एनकाउंटर किया तुम लोगों ने? डिफरेंस। Basic calculus. डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंशिएशन में लॉग का डिफरेंशिएशन और e पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, है ना? यस सर। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब अभी y is equals to a power x, हम लोग a के पावर में मानेंगे। a is a constant, but this constant should not be 1 and should be greater than 0 when we are talking as a function. फंक्शन क्या है तुम लोग को अच्छे से आगे समझेगा, बट फिजिक्स में फंक्शन भी एनकाउंटर किया है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके फिलहाल के लिए इतना समझो। फंक्शन जब भी रहेगा a पावर x एज ए फंक्शन, जब बात करेंगे तो a को पॉजिटिव लेंगे और a नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। अच्छा, क्योंकि 1 होगा तो कुछ स्पेशल नहीं है, a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पावर x में x का वैल्यू हाफ वगैरह रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ओके इसके ऊपर मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज व्हिच आई जस्ट वांट टू इंश्योर, a रेज टू 0 कितना होगा? 1 1 व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? a by a। हाँ मतलब ये जो a रेज टू m माइनस n का प्रूफ है, a रेज टू m माइनस n विल बी a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। इस क्वेश्चन में n को भी m ही कर देंगे, n को भी m ही कर देंगे तो a रेज टू m माइनस m 0 हो गया। a रेज टू 0 इक्वल्स टू a पावर m बाई a पावर m, वो कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस प्रॉपर्टी a पावर m होल पावर n? ए a रेस power m into n। a पावर m इंटू n। करेक्ट ठीक है। इसको जल्द से जल्द लिख लेना, जल्दी लिखो 2 मिनट के अंदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
हो गया तो बताओ। सर हो गया। ओके, एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, चलेगा। रेस कर रहा हूँ, किसी को रोकना है तो अभी रोक लो, एज ऑलवेज। ठीक है ना। अभी ग्राफ मतलब बेसिकली एक्स के वैल्यूज पुट करेंगे, वाई के वैल्यूज मिलेंगे और सबको ज्वाइन करेंगे। लाइक लेट अस डिस्कस टू ग्राफ्स। एक है y इक्वल टू 2 पावर x है, y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ सोचते हैं। 2 पावर x, कैन यू टेल मी x का वैल्यू 0 रहेगा तो कितना रहेगा? y का वैल्यू 1, 1 0 पे वैल्यू 1 आएगा, 0 पे वैल्यू 1 आएगा, 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 4, 4, 3 पे 8, 4 पे 16, जैसे कि 10 पे 1024. yes, 2 power 10 is a huge value, 1024. Okay, so see the speed of the graph. x पे सिर्फ 10 यूनिट मूव करो तो y पे जो है 1000 यूनिट चले गए, 1024, बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट इंक्रीज होता है। और लेफ्ट साइड देखो, -1 पे वैल्यू कितना होगा? 2 का पावर -1 half. हाफ, half, 2 का पावर -2 1/4. 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, ऐसे रहेगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कैन यू विजुअलाइज हाउ द ग्राफ विल बी? Yes, sir. So it will start off very, very slowly and suddenly it will start increasing very drastically. So this is the graph of 2 power x. 2 power x की जगह 10 power x होता तो भी यही शेप रहेगा क्या ग्राफ का? Slope और steep रहेगा। हाँ, स्लोप और स्टीप रहेगा, बट ऑलमोस्ट शेप ऑफ द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली। अच्छा, तो बेसिकली और एक चीज, और एक ग्राफ की बात कर रहा हूँ, हाफ पावर एक्स के बारे में बात करते हैं। हाफ पावर एक्स के बारे में बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिफरेंस नाउ हाफ पावर एक्स का ग्राफ? It will be a It will less 0 पे steeper वैल्यू than 1 रहेगा, 1 पे वैल्यू हाफ रहेगा, 2 पे वैल्यू 1/4, 3 पे वैल्यू 1/8। वैल्यूज क्या हो रही है? decreasing function होगा। यस, लेफ्ट साइड पे देखो, -1 पे वैल्यू क्या होगा? हाफ पावर -1, हाफ पावर -1 विल बी 2, Left में increasing। हाफ पावर -2 विल बी 4। यस, तो ये वाला, तो ग्राफ डिक्रीज कब करेगा, इंक्रीज कब करेगा? अगर a पावर x के बारे में बात कर रहे हैं तो a का वैल्यू 1 से ज्यादा है अगर, तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, और a का वैल्यू 1 से कम होगा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो दिस इज ए जनरलाइज्ड वे टू टेल। e का वैल्यू 1 से ज्यादा है कि कम है? ऑफ कोर्स, तो e पावर x का ग्राफ का शेप भी ऐसे ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन increases, like if you listen to commentary or read newspapers, few people to admire somebody's progress, they give it like a compliment, like Virat Kohli's growth is exponential, matlab he started off slow but suddenly he, like, you understood what am I trying to say? Exponential matlab, हाँ सर Yes, sir. okay, that is a compliment. Exponential graph is the fastest moving graph in mathematics. Okay, इसको बस इस ग्राफ से लिख लो। हम इसके ऊपर जो है हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। आफ्टर द होमवर्क इसको लिख लेना। इन द मीन टाइम आई स्टार्ट गिविंग यू द होमवर्क। यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में बुक से 1A एक्सरसाइज। इस बार थोड़ा मिसलेनियस सम्स भी देता हूँ, तुम लोग गिव इट ए ट्राई। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम का होमवर्क क्या था, बट स्टिल एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों मिक्स है। मतलब अगर पहले का कुछ होमवर्क है तो यू डोंट नीड टू रिपीट इट, रिपीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ा है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक Yes, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता है सबको? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. ओके, एक सेकेंड, एक इन चैप्टर एक्सरसाइज है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस का असाइनमेंट मिलेगा नेक्स्ट क्लास में. There are something called as self-practice problems. That is in the theory. You guys try to find it. It is in the theory part of. It is in between the theory of the booklet. उसके question numbers. Okay. This much is the homework है. Very less homework. जल्दी खत्म हो जाएगा. But still. अरे ratio proportion का मैं homework दे देता हूँ. तो you guys give it a try. Just to ensure. Sir, actually ratio proportion के self practice problem दिए थे. Yes. ऐसे दिए थे क्या मैंने? चलेगा फिर. ओके. वेविकर का तो फुल असाइनमेंट ही दे दिया था, वो कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा. ओके, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे एंड दिस इज द होमवर्क. 1A से ये थोड़े सम्स, 1B एक्सरसाइज 2 एंड सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आर दीज ऑल. सर और डाउट्स के एक अलग सा ग्रुप बनाया है. ओके. नाम क्या ग्रुप का? मार्गदर्शक. ओ मार्गदर्शक. यस, उसमें आई डोंट नो हर हफ्ते मैथ्स का लेक्चर हो रहा है कि नहीं. दैट उसको ना कंसिडर इट मोर लाइक ए मेंटरशिप सेशन, जिसमें टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और इन जनरल कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे. तो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एडेड इन योर ग्रुप्स और नॉट, बट सम और द अदर मैथ्स सर विल मस्ट हैव बीन एडेड. तुम लोगों के डाउट लेक्चर के लिए अलग से दीपक सर लेते हैं क्या डाउट्स? हाँ सर, लेता है. Yes, sir. तो लाइक रिलाई मोर ऑन दैट. मार्गदर्शक में जो है और 1-on-1 डाउट्स होंगे, यू कैन आस्क देयर आल्सो. वैसे तुझे पूछना क्या है वो ग्रुप्स के बारे में? सर उसमें लिखा है कि we have to maintain a separate notebook for doubt sessions, so that notebook is for the general doubt sessions जो संडे को होता है, कि या फिर मार्गदर्शक के लिए? नहीं, जनरल, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स का डाउट्स का बुक अलग होना चाहिए बस. Okay, so doubts, that book has to be maintained exclusively for those doubt मार्गदर्शक doubt sessions, or for जैसे हम फॉर जनरल. ओके सर. उसमें हमारा जो भी डाउट्स है वो लिखना है कि या फिर दूसरों का डाउट्स लिखना है? नहीं, तेरे डाउट्स. ओके. ओके, कर दो एरेज. है मतलब एरेज क्या हो गया? क्लास एंड करें. ओके सर. और किसी को कुछ पूछना है क्या?